नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में फ्लैग डे मनाया गया। बीदर दक्षिण के विधायक पंडेपा खाशमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए भाजपा और कांग्रेस नेता। कर्नाटक चुनाव 2023 4 अप्रैल की बैठक के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, सिद्धरामैया ने कहा। जेडीएस विधायक शिवलिंग गौड़ा ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल होने की संभावना। कर्नाटक में 29 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 9.59 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार जब्त किए गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त पीएसआई नागनाथ ने भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस द्वारा परेड का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सेवानिवृत्त पीएसआई नागनाथ को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल का स्वागत करते हुए संबोधन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डीसी गोविंद रेड्डी, सीईओ शिल्पा एम, एडीएसपी महेश मिगनावर सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಶುಭೋದಯ 1965ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಇಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಣಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್ಮು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪೊಲೀಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಹಂಚಿಕೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ, ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್ಒ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನೂತನವಾದ ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥ್ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬ ಹರಿತಿದ್ದೆವು। ಆ ಹಳ್ಳ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತು। ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅವಾಗ 1989 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು। ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನಿತರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು PSI ಅವರಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆ ನಾನು ಅಂತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು IPS IAS ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು PSI ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು SP ಸಾವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ गौरव पट्टिद्री। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में सैकड़ों युवा, महिलाएं और कांग्रेस और भाजपा के नेता अष्टूर और मनल्ली सहित विभिन्न गांवों के नेता जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर की गांव के बाहरी इलाके में अपने आवास के परिसर में विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने 9 से अधिक गांवों के सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और नेताओं को जेडीएस में शामिल होने पर शाल पहनाकर और पार्टी का झंडा देकर उनका स्वागत किया। साथ ही विभिन्न इकाइयों में नियुक्त कुछ लोगों को आदेश पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि दिन ब दिन अधिक से अधिक नेता और कार्यकर्ता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और मजबूती में सभी को शामिल होना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा 4 अप्रैल को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद की जा सकती है। यह दोहराते हुए कि पार्टी आलाकमान को उनके कोलार के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बारे में फैसला करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 4 अप्रैल को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किया जा सकता है। परसों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक के बाद दूसरी सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस ने पहले ही 25 मार्च को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी थी और 100 और क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करना अभी बाकी है। पार्टी ने पहली सूची में सिद्धरामैया को मैसूर जिले में वरना के अपने गृह क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जिसे राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कोलार की दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने का इरादा व्यक्त किया है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरसीकेरे निर्वाचन क्षेत्र से विधायक KM शिवलिंगौड़ा ने रविवार को इस्तीफा दे दिया और उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। उन्होंने यहां विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से मुलाकात की और अपना त्याग पत्र सौंपा। हासन जिले के अरसीकेरे से 3 बार के विधायक गौड़ा जेडीएस नेतृत्व के साथ अपने मतभेदों को लेकर मुखर रहे हैं और उन्होंने हाल के दिनों में पार्टी से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका अगला कदम कांग्रेस की ओर है और आगामी चुनाव में उस पार्टी द्वारा अरसीकेरे से अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने की संभावना है। गौड़ा पिछले कुछ दिनों में विधायक पद छोड़ने वाले तीसरे जेडीएस विधायक हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक में 29 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 9 करोड़ 59 लाख रुपए के मुफ्त उपहार जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार संयुक्त रूप से फ्लाइंग स्क्वाड, स्थानिक निगरानी दल, एसएसटी और पुलिस अधिकारियों ने 7 करोड़ 87 लाख रुपए की नकदी, 5.80 लाख रुपए की 1156.11 लीटर शराब और 49.25 किलोग्राम शराब जब्त की है। 21.77 लाख रुपए के ड्रग्स और 9.59 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार और अब तक 172 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें आगे कहा गया है कि आयकर विभाग ने 3.90 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। आबकारी विभाग ने 11.66 करोड़ रुपए की 1,93,051 लीटर शराब, 1.82 लाख रुपए की 12 किलोग्राम ड्रग्स और 264 जघन्य मामले दर्ज किए हैं। लाइसेंस के उल्लंघन के 195 मामले दर्ज किए गए हैं। शर्तें 14 एनडीपीएस और 737 मामले कर्नाटक उत्पादन शुल्क अधिनियम 1965 की धारा 15(1) के तहत। बयान में कहा गया है कि अब तक 150 वाहन जब्त किए गए हैं। सभी टीमों को मिलाकर कुल 49.38 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जिसमें नकदी, सामग्री, शराब, ड्रग्स आदि शामिल हैं। एआईसीसी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने को लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करार दिया है। वह 9 अप्रैल को कोलार में होने वाली जय भारत रैली की तैयारी बैठक में बोल रहे थे। सुरजेवाला ने मतदाताओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए जय भारत अभियान में राहुल के साथ हाथ मिलाने का आह्वान किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल देश के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि राहुल को धमकाने के लिए भाजपा ने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। एच.डी. थमैया को टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिकमंगलूर में जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी कार्यालय में मारपीट की, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़ दी और ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल हो गए। चिकमंगलूर विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी के टिकटों के आवंटन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एचपी मांझेगौड़ा द्वारा बुलाई गई बैठक में जिला कांग्रेस स्नातक और शिक्षक इकाई के अध्यक्ष जीबी पवन के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। टिकट के इच्छुक डीएल विजय कुमार, एएल महेश, महादिमाने सतीश, हरीश और सीएन अकमल मंच पर थे। बहस की शुरुआत करते हुए मंझेगौड़ा ने कहा कि आलाकमान द्वारा चुने गए उम्मीदवार की सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस मौके पर हस्तक्षेप करते हुए पवन के समर्थकों ने मांग की कि चिकमंगलुरु सीट के लिए टिकट एक वफादार कांग्रेस नेता को दिया जाए, न कि किसी बाहरी को। इसके चलते पवन और मंझेगौड़ा के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंझेगौड़ा के समर्थकों द्वारा कथित रूप से पवन के साथ मारपीट किए जाने पर तनाव व्यक्त हो गया। मैंगलोर नगर पुलिस ने रविवार को जिला कारागार के अंदर औचक निरीक्षण किया। पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार आर जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 300 कर्मियों ने छापेमारी की। उन्होंने कहा कि छापेमारी के बाद पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह जेल में किया जाने वाला नियमित निरीक्षण था। पुलिस को जेल के अंदर बीड़ी और सिगरेट के अलावा कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। निरीक्षण 1.5 घंटे के भीतर पूरा हो गया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के नियमित छापे मारे जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेल के अंदर कोई अवैध गतिविधि न हो। कैदियों तक बीड़ी और सिगरेट कैसे पहुंची, इस पर आयुक्त ने कहा कि
रिश्तेदारों और परिजनों के आने जाने के दौरान इसकी आपूर्ति की जाती है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल जेल की रखवाली कर रहा है। जेल प्रशासन शवों की जांच कर रहा है। आयुक्त ने कहा, मैंने जेल के अंदर पाए गए प्रतिबंधित पदार्थों पर जेल अधीक्षक के साथ भी चर्चा की। आध्यात्मिक शहर पुट्टापर्थी में सत्तारूढ़ वाईएसआरसी और विपक्षी टीडीपी के नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। एक दूसरे पर पत्थर, नारियल और चप्पल फेंके गए। पुलिस को लाठीचार्ज करने और दोनों समूहों को तितर-बितर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सब टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश द्वारा अपनी युवा गालम यात्रा के दौरान स्थानीय विधायक डी श्रीधर रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार, भूमि हड़पने और रेत माफिया को प्रोत्साहित करने के आरोप लगाने के साथ शुरू हुआ। विधायक ने टीडीपी नेताओं को आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। लोकेश को स्थानीय सत्यम्मा मंदिर आने और उसी के लिए व्रत लेने को कहा। बहस में शामिल होते हुए टीडीपी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पल्ले रघुनाथ रेड्डी ने कहा कि श्रीधर रेड्डी के विधायक बनने के बाद से कोई विकास नहीं हुआ है और पुट्टापर्थी में जो कुछ भी विकास हुआ है वह पिछले टीडीपी शासन के दौरान हुआ था। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और 1 अप्रैल की तारीख तय की। पुट्टापर्थी पुलिस ने हालांकि घोषणा की कि पुलिस अधिनियम की धारा 30 प्रभावी है और दोनों पक्षों को मंदिर का दौरा नहीं करने के लिए कहा। टीडीपी पार्टी कार्यालय में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और रघुनाथ रेड्डी को शुरू में कार्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में फ्लैग डे मनाया गया। बीदर दक्षिण के विधायक पंडप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए भाजपा और कांग्रेस नेता। कर्नाटक चुनाव 2023 4 अप्रैल की बैठक के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, सिद्धरामैया ने कहा। जेडीएस विधायक शिवलिंग गौड़ा ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल होने की संभावना। कर्नाटक में 29 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 9.59 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार जब्त किए गए। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।